Hello, students. So yesterday we saw a broad introduction of Socrates, and there we tried to differentiate between two kinds of eudaimonias. And eventually we moved on to Plato, and I gave you a broad structure that how we will understand Plato. And see, from exams point of view, Republic is the most prominent book that we should be focusing on. As I told you, basics, stick to basics. But then there are a few facts. For example, there is one dialogue of Plato known as Meno. And in that, we find a transition in the thinking process of Plato. For example, earlier he used to focus more on, say, ethics. But eventually he started focusing more on metaphysics and all. तो वो एक clear break जो दिखता है, तो they can put a question on that. Similarly, we can try to deconstruct major ideas of laws, because what we find in laws, a lot of ideas which you may say makes Plato more digestible, more practical. Say, for example, when we'll see in Republic, he's talking about communism of family marriages. Okay, that means the guardian class will not have some private wife or something. But when it comes to laws, he will talk to try about that marriage, like one man should always marry somebody who is of opposite nature to that man. ठीक है, तो जो बोला जाता है ना opposite attracts, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा है. And secondly, he also says that those who do not get married after till the age of 35, in fact they should be punished and dishonored. So see how marriage, the concept of marriage, takes a very different turn when we come to the last work of Plato. Got it? So these kind of differences can be made in a statement based question and all that we will try to understand. Now moving forward, uh, today we will start Plato, and the first major idea of Plato is theory of idea. And as I told you, that here he is inspired by theory of knowledge given by Socrates, and Socrates says what virtue is knowledge. And with the help of story of Heracles, I told you why knowledge is such a big thing in the Greek thought, because they think about knowledge, good, happy life, eudaimonia very simultaneously, okay, very synonymously. Now, the prominent statement of Plato when it comes to theory of idea is that reality is shadow of ideas. Okay, reality is shadow of ideas. That means he's trying to bring forth the point that what we see around us in the physical world it is everything illusion. Okay, it is not the exact reality, but we should always look about the ideas related to that reality, that particular reality. Why? Because ideas are true knowledge. Okay? These are the true concepts that you should be looking after. Ideas are transcendental, universal, etc. Got it? So reality shadow of idea basically focuses on the ontology of Plato, epistemology of Plato, as well as metaphysics of Plato. When I say metaphysics, it generally deals with how you see the nature of reality for you. Got it? तो आपकी मेटाफिजिक्स में फिर आपकी ontology और epistemology साथ में चलती है फिर. Got it? Now, in order to explain the idea about why concepts or ideas are more important, he gives a very prominent concept known as allegory of cave. Known as allegory of cave.
ठीक ना, एक एंड प्लीज कीप राइटिंग इफ यू वांट, थोड़ा सा आप रनिंग नोट्स लेते रहें क्योंकि बहुत से फैक्ट्स होते हैं जो सब जगह देना एक बार में थोड़ा सा मुश्किल है। तो जस्ट की राइट राइट इसमें एलेगोरी ऑफ केव्स में लिखिए द आइडिया मैटर dualism, the idea matter dualism is explained with the help of allegory of caves. लिखो this idea is given in book 7 of Republic. बुक 7 ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, तो जो प्रोमिनेंट आइडियाज हैं इनकी थोड़े आप लोग बुक भी रिमेंबर रखें। जैसे मैंने कल बताया था विमेन के ऊपर जो इनके विचार दिए गए वो बुक 5 में दिए गए हैं। एन एलेगोरी ऑफ के द डुअलिस्टिक रियलिटी, ठीक है, मैटर वर्सेस आइडिया, वो उनकी बुक 7 में दिए गए हैं। नाउ वेरी सिंपल एलेगोरी ऑफ केव, I hope you know it, that there are few people who are chained inside the cave and what they can see is some image on their walls and they only perceive, they till now they think that whatever they are seeing inside cave, that is reality. But what happens is one person is able to break the chains, move out, and when he sees the sun, he and he eventually realizes that, oh God, what we were seeing inside was not true reality. Reality is outside the cave. And he gets to know about this only when he comes under the sun. Now, when you open your eyes in front of sun, especially when you have been in darkness for the longest period of time, you suddenly feel pain. What does it describe? That gaining knowledge is very difficult. Got it? And you need a sun in your life in order to gain true knowledge. तो अब देखो philosopher king की importance यहीं से आना चालू हो जाएगी, that you need someone who should be able to break the shackles of our ignorance and make us knowledgeable. Got it? And will people who are inside, will they be convinced easily to break the chains and move out and see what is the actual reality? No. उनको कन्विंस करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, आप देखते हो that Socrates, as a philosopher of Agora, through his method of Ilankar, used to raise difficult questions. तो वो सन की भूमिका निभा रहा था। He was trying to make people aware that what you are ignorant inside the caves. You need to see actual reality. तो Socrates को क्या मिला? जहर मिला। Got it? तो through all these ideas, he is trying to insinuate that giving knowledge or making people get up from their slumber of ignorance is very difficult. ठीक है, लोगों के लिए आसान नहीं होता। तो टीचर या फिलोसफर की जो रोल है, दैट्स काइंड ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट रोल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस। ठीक, अब कल हमने जो जाना था कि Socrates is given hemlock. Now, when trial of Socrates is going on, Socrates says, I am like a gadfly. I am like a gadfly. ठीक, that means what? ये कीड़ा होता है, भिन भिन करता है। ठीक है, but why this concept or why Socrates is calling himself gadfly? क्यों एकदम से उसको ये बोलना पड़ा? During in trial he says that gadfly is there because state is more like a big horse which gets slows a lot of time. Therefore, in order to make this horse aware of its strength, कि भाई तुम भी घोड़े हो, you need a gadfly. Got it? You need a gadfly. ठीक, तो आप एलेगोरी ऑफ केव से रिलेट कर सकते हो दैट टीचिंग
or making people aware of their ignorance is not an easy task, and people generally gets offended by it. People are not ready to break their chains or shackles. ठीक है, तो ये गैटफ्लाई वाला आप याद रखेंगे. गैटफ्लाई वो अपने को इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो स्टेट को एक बिग हॉर्स से कंपेयर कर रहा है जो कि स्लो हो चुका है. Therefore, every now and then it needs some kind of outside irritation or something so that it understands its own potential. Got it? Now, एलिगेरी ऑफ केव के तो ये इंटरप्रिटेशन है ही, बट देयर इज वन फेमस अमेरिकन फिलोसोफर T.Z. Levine. T.Z. Levine, and she has given her own interpretation. ठीक है, तो उनके अनुसार I think you can write these 3-4 points. T.Z. Levine. ठीक है, तो राइट फर्स्ट इंटरप्रिटेशन. ठीक, देखो एलेगोरी ऑफ केव सजेस्ट that how our everyday life is full of superficiality. Is full of superficial realities. तो हम हमेशा सुपरफिशियल लाइफ जी रहे होते हैं. ठीक है, हमको पता नहीं है एक्चुअली व्हाट इज गुड फॉर अस. राइट, सेकंड इंटरप्रिटेशन लिखो. देखो एलेगोरी ऑफ के is the criticism of modern science. Is a criticism of modern science. क्यों मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा सेंसेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है. The scope of logic and reason has actually come down. Got it? तो allegory of cave is a criticism of modern science. ठीक, नेक्स्ट लिखो. लिखो इट इज अ पॉलिटिकल एलिगरी. इट इज अ पॉलिटिकल एलिगरी. इट इज अ पॉलिटिकल एलिगरी. ठीक, पॉलिटिकल एलिगरी ऐसे समझना है हमें कि केव में जितने लोग रह रहे हैं उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, जनता भी शामिल है. ठीक है, सब इग्नोरेंट हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर करप्ट. ठीक है, तो अंडरलाइन करो पॉलिटिकल एलिगरी. देखो इट मींस लाइफ इन केव is similar to the life of politics. ठीक, देखो both leaders and public
both leaders and public are ignorant and corrupt, are ignorant and corrupt. ठीक है, and next interpretation लिखो, लिखो, it is also an allegory of philosopher king, it is also an allegory of philosopher king ठीक, क्यों, जो पहला बंदा ने चेन ब्रेक की, मूव्ड आउट, बट ही स्टिल हैड अ रिजॉल्व टू कम बैक एंड मेक हिज फेलो पीपल अवेयर अबाउट देयर इग्नोरेंस, वही काम तो फिलोसोफर किंग कर रहा है। ठीक है, तो लिखो, 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 द वन हु गॉट लिबरेटेड फ्रॉम केव has a mission to come back and liberate other fellow beings, other fellow beings। ठीक, लिखो, even if they get killed, even if the philosopher king gets killed, तो ब्रैकेट में लिखना सॉक्रेटिस। ठीक, so broadly the statement reality is shadow of ideas is basically seeing the reality existing around you in the form of dualism, कि मैटर है और आइडिया है, लेकिन मैटर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज अ मियर शैडो ऑफ द एसेंस। हम एसेंस चेज नहीं करते हैं, हम हमेशा शैडो चेज करते रहते हैं। ठीक है, ये आपको आगे जा करके लॉज में अलग अलग तरीके से भी समझने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन लॉ प्लेटो विल टॉक अबाउट डिवाइन गुड वर्सेस ह्यूमन गुड्स। ठीक है, एंड इंटरनल गुड्स वर्सेस एक्सटर्नल गुड्स। ठीक है, यही सिमिलर आइडिया है। डिवाइन गुड्स आप बताओ, भगवान, परफेक्टली रैशनल, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट स्पिरिट, ये गुड के पीछे हमने भागना है, ना कि ह्यूमन गुड्स, ये चेंजिंग है। सिमिलरली इंटरनल गुड्स मतलब सोल सर्चिंग, सोल क्राफ्ट, रेदर देन एक्सटर्नल गुड्स, आपकी फिजिकल नीड्स, आपकी बॉडली नीड्स, कैसे दिख रहे हो, क्या मेकअप पहनना है, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, ये सब ढल जाता है। सी फॉर्मर मिस ऑल द ब्यूटी क्यून्स एंड ऑल। ठीक है, दे डोंट रिजेंबल व्हाट दे यूज्ड टू लुक लाइक अर्लियर। ठीक है, बट जो उनके विचार हैं, द आइडियाज दे गेव ऑफ सर्विंग, of being loyal to their promises. For example, Shushmita Sen, she promised she will adopt a daughter, she just did that. तो वो उनका डिवाइन गुड है, वो उनका एक्सटर्नल इंटरनल गुड है, एंड दैट हैज कंटिन्यूड। बट what may not continue is your human goods or external goods, how you look। Got it? So ये idea, reality is shadow of idea, it will be carried forward in other works also, and in laws we find it in the form of these two concepts, divine goods versus human goods। तो आपके JRF में they can definitely ask you the question around that the concept of divine and human goods is found in which of the dialogues of Plato's। ठीक है, तो you must remember laws। Got it? Now again,
रिलेटेड टू दिस आइडिया, ठीक है, अब जब हमने आइडियाज की बात कर ली, हमने जब ये बात कर ली दैट chasing material world is not good, we will eventually try to understand Plato's theory of soul. Plato's theory of soul. And as I told you, that idea of soul is not a very prominent idea in Western thought. ठीक है, वो यहाँ से पाइथागोरस गए होंगे एंड वहां से फिर इंस्पायर होके हम सोल वोल की बात वहां पे देखते हैं, ठीक है। So, Plato believes that every soul is made up of थ्री क्वालिटीज या थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके लिए ही ऑल्सो कम्स अप विथ myth of metals, comes up with what? Myth of metals, ठीक है। तो लेकिन इसका प्रिजम्पशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहला, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज सोल। तो क्या प्लेटो ये मान रहा है कि किसी में सोल नहीं भी हो सकता है? Why I'm saying that? Because yesterday we saw that there was a concept, the weakness of will, ठीक है। तो प्लेटो, सॉक्रेट्स, ये सब क्या मानते हैं कि इंसान सब में सोल है, तो मतलब इंसान जो है वो इग्नोरेंट हो सकता है लेकिन वो वॉलेंटरीली कोई हार्म नहीं करता है, ठीक है। बट दिस ऑल्सो विल चेंज अ लिटिल बिट व्हेन वी कम टू लॉस, बट फॉर टाइम बिंग ये समझो दैट हिज बेसिक प्रीमाइज इज दैट everybody has soul. Now, soul might differ in quality. Why? Because when I say three elements, ठीक है, आपका golden, silver and bronze, the proportion of it keeps varying among people. तो जो मैन ऑफ रीजन होते हैं, ठीक है, उनमें डोमिनेंटली क्या मिलेगा आपको? डोमिनेंटली यू विल फाइंड हाई प्रपोर्शन ऑफ गोल्ड इन देम, ठीक है। और जो मेन ऑफ करेज हैं, ठीक है, उनमें आपको कॉपर मिल जाएगा और जो सिल्वर मिल जाएगा। और जो मेन ऑफ एपेटाइट हैं, पैशन है, जिनमें डिजायर है, जो जनरली एंड अप बिकमिंग स्लेव्स एंड ऑल, उनमें आपको किसका प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा? ब्रॉन्ज का। सो बाय दिस मिथ ऑफ मेटल ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ क्लास सोसाइटी and this will determine what? The stratification in Athens. Stratification in Athens. Got it? Why we are talking about stratification? Because he is understanding that there is a decline in Athens because Athens is too much democracy. Too much democracy. Therefore, he will at the end of the day prefer the rule of philosopher king. Got it? अब जब हम लॉज में देखेंगे, लास्ट बुक इसका, there he makes a comparison between two countries. One is Athens. यहां पे क्या हो रहा है? Too much democracy. And other being Persia, no democracy. ठीक, ये एक्चुअली कंपैरिजन है एथेंस और पर्शिया का, ठीक है। तो एथेंस टू मच डेमोक्रेसी, इवेंचुअली क्या होता है? डिक्लाइन। पर्शिया नो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक रूलर, इसका भी इवेंचुअली क्या होता है? डिक्लाइन। गॉट इट? सो in laws he will try to combine these two things, ठीक है। ना तो टू मच डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ना टू मच अथॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए, देयर शुड बी मिक्स ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग्स। गॉट इट? तो यहां पे वी सॉ दैट व्हाई ही इज ट्राइंग टू क्रिएट इन रिपब्लिक a stratification system because he's fed up with too much democracy. Got it? And he wants only
people with maximum reason, they should be the rulers. ठीक है, तो in his theory of soul, he is trying to give a myth of metal so that at the end of the day he can justify the rule of philosopher king, because only in those person in whom reason dominate, जिनके सोल में गोल्ड की सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है, they should eventually become your rulers. Got it? But then we saw certain changes towards the end in laws. He will compare Athens and Persia, and in both systems, in one system there is too much democracy and in one system there is too less democracy. और ये दोनों को मिलाकर के बोलेगा कि we need something in between. Got it? Now we will come to the next major concept of Plato. The most prominent is his theory of justice. It's his theory of justice. Theory of justice. Now, as we all know, that justice is a very architectonic principle of any society. Got it? Why we are saying architectonic? क्योंकि जस्टिस पर ही अदर वैल्यूज टिकती हैं. ठीक है, यू कांट हैव वन वैल्यू सर्वाइविंग विदाउट जस्टिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर लिबर्टी है बहुत ज्यादा, बट लिबर्टी इज लीडिंग टू इनइक्वालिटी, somewhere down the line with the help of distributive justice you will have to ensure that liberty is also egalitarian. Got it? So इसीलिए justice को architectonic principle बोला जाता है. And when I say architectonic, that means what? Balance. ठीक है, that means that there is a perfect balance existing in a building, कि earthquake भी आ रहा है तो वो अपने आप को बैलेंस कर पा रही है from internal and external turmoils. That is why we call justice as an architectonic principle. Now, within justice, he will start with a very prominent statement known as state is individual writ large. State is individual writ large. Now remember, yesterday I told you that these thinkers, the ancient thinkers, their way of thinking is gestaltic. Gestaltic means for them, the bigger picture is far greater, far important than the constituent units that make the bigger picture. Got it? Similarly, यहाँ से भी हमें similar idea मिलता है. Now, हमें जब जस्टिस को समझना है तो प्लेटो के लिए जस्टिस तभी आएगा, मतलब जो जस्टिस हमारे मन में है या हम इंडिविजुअल्स में, वही जस्टिस स्टेट में होता है. दैट मीन्स व्हाट? दैट बिफोर आस्किंग फॉर जस्टिस फ्रॉम स्टेट एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल शुड बिकम जस्ट. और इंडिविजुअल जस्ट कब बनेगा? जब उसके सोल में साइकिक हार्मनी होगी. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? रीजन शैल बी कंट्रोलिंग अदर एलिमेंट्स ऑफ सोल. ठीक है, मतलब आप में मॉडरेशन है, आप में एक्सट्रीम्स नहीं है. यू आर एबल टू कंट्रोल योर एपेटाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन. ऑल्सो व्हेन यू हैव साइकिक हार्मनी, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स फॉर विच यू आर मेड ऑफ. ठीक है, ये नहीं कि आपको करना कुछ था, आपसे करवाया कुछ हो जा रहा है. दैट इज नॉट साइकिक हार्मनी, दैट इज अ कंप्लीट डिसहार्मनी इंटरनली. तो अगर आपके अंदर साइकिक हार्मनी है तो आप वेल प्लेस्ड हैं इन अ सोसाइटी, you are a good citizen for the society, you are helping the state, and that is how harmony, peace and justice will come in the state as well. When he says state is individual writ large, he is actually saying that when you have to understand the concept of justice, आप उसको bigger level पे, state के level पे समझ सकते हो. Secondly, this statement also gives the organic theory of state. क्यों? State जो है, चाहे एरिस्टोटल हो, सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, फॉर एवरीवन स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट. ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, विच विल बी गिवन बाय हुम? एक तो सोफिस्ट ने भी दी है, ठीक है, जैसे थ्रेसिमैकस हैं या ग्लोकन हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू ऑफ स्टेट दे रहे हैं. आगे जाकर कौन पिक करेगा?
Hobbes, ठीक है, and we will see a trend towards the contractual theory of state. But यहाँ पे this is organic theory of state, and there is another statement which is through which we can see a link that how justice at an individual level, psychic harmony at an individual level, also ensures the greater harmony at the societal level. एक statement है, state do not come out of oak or rock, they inhere in minds of people living under it. Got it? मतलब आप स्टेट को रैशनली भी समझ सकते हो, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? तो ये आगे जाकर के हीगल में ये सिमिलर स्टेटमेंट मिलेगा. हीगल क्या बोलेगा? रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल. दैट मीन्स व्हाट? आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ करके व्हेन यू सी स्टेट, यू आर एक्चुअली सीइंग गॉड, यू आर एक्चुअली सीइंग perfect spirit, you are actually seeing perfect reason. Got it? Now, as we know, the method of Plato is dialectic. So Plato will do a dialogue with his compatriots, with his students and all, and they will give one view of justice and Plato will try to counter it. ठीक है? तो सबसे पहले है आपका Syphilis. ठीक है? तो Syphilis will say justice means doing one's own duty, paying one's own due. ठीक है? अब प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है? इट्स अ कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स इट शुड बी ट्रांसेंडेंटल एंड यूनिवर्सल. तो प्लेटो क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा सिफिलिस का? दैट व्हाट इफ यू हैव बॉट अ वेपन फ्रॉम अ पर्सन एंड टुमारो दैट पर्सन बिकम्स मैड, तो विल यू पे हिम हिज ड्यूज? क्या आप जाकर के उसकी वेपन लौटाओगे? बिकॉज नाउ दैट पर्सन कैन बी हार्मफुल टू अदर्स. तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो कैंसिल हो गया. ठीक है? डूइंग वंस ओन ड्यूटी, तो ही विल एक्सेप्ट डूइंग वंस ओन ड्यूटी बट पेइंग ड्यूज को नहीं मानेगा. ठीक है? अब इसमें क्लैरिफिकेशन जो है सिफिलिस के बेटे लाएंगे, पॉलीमार्कस. ठीक है? तो ही विल से व्हाट? पेइंग ड्यूज मींस डूइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड इविल टू योर एनिमी. गॉट इट? अब प्लेटो काउंटर करेगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल this principle again cannot be universal because it is very difficult to identify who is your friend and who is your enemy. और कोई गारंटी नहीं कि आज जो एनिमी है कल फ्रेंड ना हो, जो आज फ्रेंड है वो कल एनिमी ना हो. यू कांट अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑल्सो यूनिवर्सली. सेकेंडली, जस्टिस कैन डू नो हार्म. ठीक है? जस्टिस जो होता है वो पीस के लिए होता है, जस्टिस हार्मनी के लिए होता है. तो इविल कैन नेवर ब्रिंग हार्मनी. तो जस्टिस विल नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ हार्म. सो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट हार्म? तो पॉलीमार्कस के बाद नेक्स्ट डिबेट में फिर कूदेंगे थ्रेसीमैकस. ठीक है? थ्रेसीमैकस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सोफिस्ट एंड फ्रॉम हियर वी विल सी टू प्रोमिनेंट ट्रेडिशंस. पहला एक काम मैंने आपको बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से इंस्पायर होगा, एंड सेकेंड बीइंग योर सिविल डिसोबीडियंस का. ठीक है? तो थ्रेसीमैकस क्या कह रहे हैं? द जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर. ठीक है? माइट इज राइट का ट्रेडिशन है, एंड इसलिए अगर आपको लगता है दैट जस्टिस इज नॉट सर्विंग योर पर्पस, द पर्टिकुलर लॉ इज नॉट सर्विंग योर पर्पस, then you should not follow that law, because at the end of the day that particular law is coming from the elites, from the strong people, from the powerful people, and it is made to serve their interest. लेकिन प्लेटो इसको काउंटर करेगा एंड प्लेटो विल से ओके देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स. कैसे? फर्स्ट, थ्रेसीमैकस ये समझ रहा है कि जो किंग है वो हमेशा किंग रहेगा या रूलर्स हमेशा रूलर्स रहेंगे. गॉट इट? बट ऐसा तो नहीं है. डोंट यू थिंक that they might like to bring certain laws or certain rules which also addresses a situation when they are not king or when they are not rulers. ठीक है? तो आपने रॉल्स जब आप पढ़ोगे तो रॉल्स के जो वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो ये सब चीजें हो रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक की जा सकती हैं. वाई? बिकॉज वहां पे भी एज अ रैशनल पर्सन you wouldn't ensure that when you get out of veil of ignorance, you are able to ensure that even if you are poor, your needs are being taken care of. तो वही चीज यहाँ ये बोल रहा है, पहला चीज कि how do you ensure that you will remain ruler throughout? You can't remain ruler throughout. Secondly, ये भी मानते हो कि आदमी से गलती होती है. What if a king has made some rules or the ruler has made some rules
बट वो उसका इंटरेस्ट सर्व करने की जगह हार्म करने लग गए। ठीक है, उसने तो सोचा था कि मेरा ही इंटरेस्ट सर्व करेगा, बट हो सकता है दैट माइट हार्म। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली यू सी द फार्म लॉज ब्रॉट बाय गवर्नमेंट, बट वो उनको वापस लेने पड़े बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट it is for good, but eventually they have to be taken back. Got it? तो इंसानों से, रूलर से भी गलती हो सकती है। ठीक है, and therefore you can't say that it only serves the interest of the ruling class. Also ruling class अगर rules बनाएगा तो रूल्स बनाते क्यों हैं? फॉर वेलफेयर ऑफ एवरीबडी, फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, तभी जस्टिस एंड हार्मनी सर्व होगी सोसाइटी में। तो यू कांट से दैट जस्टिस इज मेंट ओनली फॉर फ्यू or laws and rules are meant only for few. It is meant for everybody. Got it? क्यों? जब एक शू मेकर होता है, जब शू बनाता है, तो वो शू अपने लिए नहीं बना रहा है। ठीक है, he will get satisfaction, he will get happiness when his customer wears that shoe and feels satisfied. So similarly, if rulers are making rules, they will feel good, they will feel happy if their rules are meant for everyone. So you can't say that it is serving only the interest of the strong. ठीक है, अब लास्ट में ग्लॉकन है, ही इज अगेन अ सोफिस्ट, एंड ग्लॉकन विल गिव अ काउंटर, मतलब इनसे तो काउंटर ही देंगे। ही विल से दैट नो, justice is not there to serve strong people, justice is there to serve weak people. ठीक है, क्यों? क्योंकि weak people को अगर अपनी सिक्योरिटी चाहिए ना, so they have done some kind of contract with the rich people that we will abide by law but you will have to provide us security. So justice is actually serving the interest of the weak. ठीक है, क्यों? ग्लॉकन जो है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देता है यहाँ पे, गाइजेस रिंग, गाइजेस रिंग। ठीक है, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया अंगूठी पहनते ही गायब हो जाता था ना, वैसे वो कह रहा है कि लोग जस्टिस या जस्ट रूल्स इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसके कुछ आउटकम्स होते हैं, पेनाल्टीज होती हैं ऑफ नॉट फॉलोइंग इट। द मोमेंट यू रिमूव पेनाल्टीज और द मोमेंट पीपल आर अलाउड टू बी इनविजिबल, दे विल हैव गॉट नथिंग टू डू विथ फॉलोइंग लॉस। ठीक है, उनका पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो इनजस्टिस करें, बिकॉज इनजस्टिस स्पेस, इनजस्टिस इज फार मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू जस्टिस। गॉट इट? तो प्लेटो इसको भी काउंटर करेंगे, बट थ्रेसिमैकस और ग्लॉकन का बहुत ज्यादा काउंटर प्लेटो के पास होता नहीं है। गॉट इट? तो इवेंचुअली प्लेटो विल रीच टू कंक्लूजन, justice is virtue, justice is duty, justice is character of soul, and justice is necessary for all societies. No society can exist without justice. ठीक है, और क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस देगा प्लेटो एट द एंड ऑफ द डे? ही विल से justice is all about proper stationing, functional specialization and non-interference. That means what? जिसका जो काम है वही करेगा। ठीक है, don't you think in India one system to an extent can be compared to what Plato is saying here? Got it? This is his theory of justice. Now, how will you ensure कि आइडियल स्टेट तो आपने बना दिया? ठीक है, वो गाइडेंस रिंग वाला प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो स्टैंड अलोन आ सकता है, दैट इन हु काउंटर्स द कॉन्सेप्ट और द डिबेट ऑफ जस्टिस विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस रिंग। सिफिलिस और जो पॉलीमार्कस हैं, दे आर गिविंग अ वेरी कन्वेंशनल थियरी ऑफ जस्टिस। जो थ्रेसिमैकस हैं वो रेडिकल थियरी ऑफ जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था दैट इट इज मेंट ओनली फॉर अ फ्यू सेक्शन। और जो ग्लॉकन है वो काफी प्रैक्टिकल थियरी या प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, तो सी प्लेटो विल काउंटर ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड ही विल ट्राई टू गिव अ वेरी यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आप प्लेटो के जस्टिस को लीगलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस नहीं कह सकते हो, इट इज अ वेरी universal idea of justice and
For him, justice is more like a duty. Justice is more like a virtue. Got it? तो ये आपको पता होना चाहिए because there was a question. हाँ. Which among the following statement is correct? Platonic justice is a legal concept. The Greek word for justice is dikaiosune. Platonic justice is meant true in word and deed and paying one's debts to gods and men. And last, Platonic justice consists in conformity to the laws and institutions laid down by the sovereign for his benefit and enforced by his power. ठीक है? तो आप खुद देखिए, लीगल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है? वाई? बिकॉज लॉज आर ऑलवेज कंटेक्चुअल. हम यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस कर रहे हैं. कम टू थर्ड, ट्रू इन वर्ड एंड डीड एंड पेइंग वंस डेट. तो डेट तो नहीं हुआ क्योंकि सेपलस का काउंटर हो चुका है यहाँ पे. Then last, consist in conformity to laws and institutions laid down by sovereign for his benefit and enforced by his power. ये थ्रेसिमेकस का काउंटर हो रहा है यहाँ पे. तो लॉजिकली बचा आपके पास क्या? एक थिंग, द ग्रीक वर्ड फॉर जस्टिस इज डिकायोजीन. ठीक है? ऐसे भी ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन, there are two statements, assertion and second is reason. Assertion is Platonic justice represents disposition to do the right thing. Second, it is good to be unjust but bad to suffer injustice. तो रीजन तो साफ दिख रहा है गलत है क्योंकि जस्टिस कैन नॉट बी अनजस्ट, इट कैन नॉट ब्रिंग हार्म. तो सेकेंड आर तो गलत ही है. अब ए, प्लेटोनिक जस्टिस रिप्रेजेंट डिस्पोजिशन टू डू राइट थिंग. तो राइट थिंग मतलब वर्च्यू, ठीक है, वो है. तो एजर्शन आपका करेक्ट है. तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3. A is true but R is false. Got it? Similarly, the third question, which among the following statements is true? Plato's Republic is a book on ethics. It's a book on politics. It's a book on ethics and politics. And D, it's a book on education. तो C, आपका जो भी ट्रेडिशन है टिल से एरिस्टोटल एंड ऑल, दे सी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स एज सिनोनिमस. वो अलग अलग नहीं करके देख रहे हैं. कौन अलग करके देखता है पहली बार? मैकियावेली. गॉट इट? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. नाउ वंस वी हैव डन हिज थियरी ऑफ जस्टिस, वी शुड कम टू हिज थियरी ऑफ एजुकेशन. गॉट इट? एंड प्लेटो हैज ट्राइड टू एंश्योर और ही हैज अंडरस्टूड द main role of Plato, a main role of state as a pedagogic institution. That means what? State का रोल है to ensure कि उनके citizens जो हैं वो उनमें वर्च्यू डेवलप हो और फिलोसफर किंग बनकर बाहर निकले. तो ही इज सजेस्टिंग अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. एंड हियर अगेन ही इज नॉट टोटली डंपिंग what is there in Athens and he is not totally accepting what is there in Spartan education system. ये दोनों को मिक्स करके एक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें there is a filtration process and all. But again here there is one contradiction क्योंकि बहुत जगह वो एजुकेशन में वो पोएट्री वोएट्री को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट हिज फोकस इज मोर ऑन फिलोसफी, फोकस इज मोर ऑन मिलिट्री एजुकेशन, फोकस इज मोर ऑन लॉजिक एंड ऑल. लेकिन रिपब्लिक में इवेंचुअली जो है प्लेटो बैन्स पोएट्री, स्पेशली पोएट्री ऑफ होमर. तो ये एक समझने की बात है दैट ही इज मोर कंसर्न, या उनमें आप कह सकते हो बहुत ज्यादा स्पार्टन ट्रेडिशन देखने को मिलेगा यहाँ पे. ठीक है? तो यू शुड रिमेंबर वन फैक्ट दैट प्लेटो बैन्स वन बुक, और मतलब जनरली ही इज ट्राइंग टू बैन पोएट्री, बट वो होमर की पोएट्री को बैन करने की बात करते हैं इन हिज बुक रिपब्लिक. ये क्वेश्चन बन सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड टू बी बैन बाय प्लेटो. गॉट इट? नाउ there is all kind of education here. तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए. क्यों? ताकि स्टेट कंट्रोल्ड हो सके, स्टेट सिलेबस डिफाइन कर सके. क्यों? एथेंस की प्रॉब्लम क्या है? टू मच डेमोक्रेसी.
And with the rise of sophists, what has happened is the culture of private tutors and all. तो private tutors बहुत गलत सलत भी पढ़ा सकते हैं. The state should have control on the young minds. State should know what are they being fed, what are they being taught. ठीक है. फिर compulsory military education and lifelong process है and 50 की एज तक जो है आपको पढ़ना है and through frequent filtration process ultimately you will get philosophers and बाद में जाकर के इनमें से आपको एक फिलोसफर किंग मिलेगा. नाउ इतने सारे फिलोसफर किंग हो जाएंगे, इतने सारे फिलोसफर्स निकलेंगे, तो हाउ विल यू चूज वन फिलोसफर किंग आउट ऑफ देम? हाउ विल यू एंश्योर? हाउ विल यू चूज वन फिलोसफर किंग आउट ऑफ देम? तो प्लेटो इसका जवाब देता है कि philosophers, their first love is knowledge, so they will be very reluctant to give up their dear profession. They will be very reluctant to leave what they love. तो वो बहुत reluctantly philosopher king बनेंगे. So there will be no problem of say filtration or no problem of bad blood between various philosophers. उनसे जनता चूज करेगी, उनसे बोलेगी कि आप करो एंड दे विल बी वेरी रिलक्टेंट टू डू सो. बट इवेंचुअली बिकॉज फिलोसफर किंग का वर्च्यू क्या है जो हमने एलिगोरी ऑफ केव में देखा था, टू मेक पीपल लेट देम कम आउट ऑफ इग्नोरेंस, तो इसलिए फिलोसफर रिलक्टेंटली मान जाएगा. ठीक है. बट देन दिस इज अ वेरी बैड इंटरप्रिटेशन और बैड आउटकम बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट पीपल हु आर डिसइंटरेस्टेड इन जॉब टू डू देयर जॉब. ठीक है. तो ये एक क्रिटिसिज्म है इसका. नाउ वंस यू हैव गॉट योर फिलोसफर किंग, देयर आर चांसेस दैट योर फिलोसफर किंग माइट टर्न करप्ट. तो उसको कैसे इंश्योर किया जाए? हाउ टू इंश्योर दैट योर फिलोसफर किंग रिमेन्स ट्रू टू द गोल फॉर विच ही वॉज फर्स्ट मेड अ फिलोसफर किंग. तो इसके लिए जो एजुकेशन इज व्हाट, एजुकेशन इज अ प्राइमरी प्रोसेस. अब उसमें कोई लूप होल्स ना रह गए हों या वो एजुकेशन जो आउटकम निकला है वो आउटकम बेस्ट बना रहे, वो कैसे इंश्योर करेंगे? थ्रू कम्युनिज्म. ठीक है. तो व्हेन यू सी द वेरी लेमन आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, इट मींस कॉमन ओनरशिप. गॉट इट? अब जो कम्युनिज्म के बारे में हम जानते हैं, जो फेमस है इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इन द पॉलिटिकल थियरीज, is the communism of Marx. ठीक है. But there is very structural difference between Plato's communism and Marxist communism. ठीक है. प्लेटो जो है दो टाइप ऑफ कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं. ठीक है. वन कम्युनिज्म इज ऑफ प्रॉपर्टी, अनदर इज ऑफ फैमिली वाइफ. फिर प्लेटो का जो कम्युनिज्म है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द गार्डियन क्लास. ठीक है. गार्डियन क्लास कौन सी होती है? गोल्ड एंड सिल्वर वाली. ठीक है. इसमें भी जो सिल्वर है, गॉट इट, उनको हम ऑक्सिलरी क्लास में भी रखते हैं बिकॉज दे विल हेल्प द गोल्डन क्लास, दे विल हेल्प द फिलोसफर किंग एंड द अपर क्लास टू वर्क. ठीक है. तो एंड जो मार्क्स का फिर कम्युनिज्म है दैट इज फॉर एवरीबडी. तो हियर इसके कम्युनिज्म में भी देयर इज अ हायरार्की और स्ट्रैटिफिकेशन. इट इज मेंट ओनली फॉर द अपर एक्लियन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. अब पर्पस क्या है? प्लेटो को लगता है कि प्रॉपर्टी हैज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, और उससे भी ज्यादा करप्टिंग इन्फ्लुएंस फैमिली का होता है बिकॉज फैमिली में आप इमोशनल हो जाते हो, मोह माया में बन जाते हो एंड इवेंचुअली देयर आर चांसेस टू बिकम करप्ट. देयरफॉर ही सेज दैट इट इज फॉर द स्टेट टू डिसाइड हु कैन मैरी, बट मैरिज भी प्राइवेट मैरिजेस नहीं होंगी. ठीक है. कोई किसी की प्राइवेट वाइफ नहीं होगी. वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एंश्योर दैट जो एथेंस की रेस है वो बनी रहे. इसी को हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स. ठीक है. हिटलर आगे आकर यही करता है. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई पॉपर क्रिटिसाइजेस हिम. ठीक. then communism of property we saw, communism of family, no private family and child की जो custody है. हाँ. फिर प्लेटो ये भी सजेस्ट करता है देयर विल बी अ लॉटरी सिस्टम. ठीक है. कि कौन किसके साथ
प्रोक्रिएट करेगा, कौन किसके साथ सेक्स करेगा, दैट विल बी अ लॉटरी सिस्टम डिसाइडेड बाय द स्टेट, ताकि जो रेस है, जो एलीट पीपल है वो बने रहे। ठीक है, और ये तो एक्चुअली स्लेव क्लास या पीपल ऑफ कॉपर के लिए तो बना नहीं है ये चीजें। ठीक है, नाउ सी कंट्रास्ट दिस विद द मैरिज सिस्टम आई टोल्ड यू इन लॉज। मैरिज वहां पे क्या बोल रहा है, पहली चीज नॉट स्टेट कंट्रोल, दैट मीन्स व्हाट, पीपल आर फ्री टू चूज देयर काउंटर पार्ट। उसमें भी उसका एक सजेशन है कि पीपल शुड बी इंस्पायर्ड टू मैरी पीपल ऑफ देयर ऑपोजिट कैरेक्टर, ऑपोजिट नेचर। देखो यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है, पीपल शुड बी इंस्पायर्ड टू डू सो। मतलब स्टेट का डंडा नहीं है कि तुमको यही करना है, ऐसे ही करना है। रिपब्लिक में क्या है, स्टेट का डंडा है। गॉट इट? तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन द कंसेप्शन ऑफ मैरिज फ्रॉम प्लेटो वी आर सीइंग इन रिपब्लिक टू प्लेटो वी आर सीइंग इन लॉज। ठीक, अगेन मूविंग अहेड वी विल सी अ फ्यू डिफरेंसेस। तो जैसे प्लेटो क्या है, आइडियलिस्ट है, मार्क्स क्या है, मटेरियलिस्ट है। ठीक है, एंड प्लेटो जो है जनरली क्लासेस में हार्मनी देखता है। ठीक है, ही इज अ वेरी ऑर्गेनिक व्यू, बट मार्क्स सीज इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन क्लासेस एंड ऑल। फिर प्लेटो जो है क्लासलेस सोसाइटी तो नहीं बना रहा है, प्लेटो कम्युनिज्म इज ऑल अबाउट क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, एंड प्लेटो सजेस्ट ओनली, प्लेटो सजेस्ट बोथ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी, मार्क्स सजेस्ट ओनली कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, and related to philosopher king only there is a famous statement by Plato. ठीक है, unless philosophers are rulers or rulers learn philosophy there is no end to the predicament of human life। ठीक है, तो वही एजुकेशन का लॉजिकल आउटकम फिलोसफर किंग है। तो ये तो कह रहा है या तो किंग फिलोसफी पढ़ने लग जाए या फिलोसफर किंग रूलर्स बन जाए। जब तक ये नहीं हो रहा है, रेस्ट एश्योर्ड दैट एथेंस विल नेवर बिकम अ Callipolis, ideal state. क्यों? Because of the corruption, today Athens seems like a divided state, rich state and poor state. Two cities की बात करता है। Athens seems like two cities, not one or integrated cities. ठीक है? Now, philosopher king पे कोई limitation नहीं है except he can't change the constitution। ठीक है, philosopher king has absolute powers except changing the constitution। Now again इसको आप कंपेयर करिए इन लॉज से। इन लॉज में दो चीजें हैं, एक तो लॉज डिक्टेटर से आएंगे बट वो वेलफेयर के लिए रहेंगे, एंड सेकेंडली वहां पे कंपल्शन के साथ साथ परजुएशन का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे लॉज में कैसे। एंड सेकेंडली इन लॉज प्लेटो हैज इंट्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ चेक ऑन फिलोसफर किंग, अगर कोई भी रूलर है, in the form of scrutineers and the nocturnal council। ठीक, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन द रोल ऑफ स्क्रूटिनियर्स एंड हु वेयर स्क्रूटिनियर्स। ठीक है, हम करेंगे इसको। ठीक, तो आपने ये भी देख लिया, तो क्रिटिसिज्म। ठीक है, नाउ वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफर किंग will come from Aristotle, and he is actually doubting that how can you ensure that philosopher king will not become corrupt, because at the end of the day he is also a person। आप कितने भी checks and balances लगा दो उसमें प्रॉब्लम होगी, and that is where the famous statement of Aristotle comes into picture, which is known as law is reason without passion। that means what? law is reason without passion। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ठीक है, जो फिलोसफर किंग का लॉ है वो भी रीजन से आया है। ठीक है, उसके पास भी 100% रेशनैलिटी है, बट जो पॉलिटी में डेलिब्रेशन से लॉ आएगा वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पैशन नहीं होगा, उसमें एक पर्सन के पर्सनल इम्प्रिंट्स नहीं होंगे। तो लॉ शुड ऑलवेज बी इम्पर्सनल। ठीक है, और सिंस द लॉ विच इज कमिंग फ्रॉम पॉलिटी, ठीक है, रूल ऑफ मिडिल क्लास एंड ऑल,
through deliberation, through dialogues and all, that law will come with proper checks and balances. ठीक है, उसमें कोई पर्सनल बायसेस नहीं होंगे, वो वेलफेयर के लिए बेटर होगा. ठीक है, तो एरिस्टोटल गिव्स द फेमस स्टेटमेंट, लॉ इज रीजन विदाउट पैशन. ठीक, नाउ अगेन एक एक्चुअली एक स्टेटमेंट और बनता है दैट एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लेटो सेकंड बेस्ट. तो एज आई throughout my class I have hinted that by the time laws come into picture, Plato is trying to replace the idea of philosopher king with a society or the city ruled by laws. और वो laws जो हैं वो थोड़े डेलिब्रेशन से आएंगे. वो ऐसा नहीं है कि केवल डिक्टेटर बोल देगा, पुश कर देगा एंड पीपल विल एक्सेप्ट दैट. ठीक है, नहीं, देयर विल बी चेक्स एंड बैलेंसेस. इसीलिए देयर इज वन अगेन फेमस स्टेटमेंट नोन एज that Aristotle's ideal state is Plato's second best state. ठीक है, now linked to this again is one idea known as life cycle of governments. ठीक, तो Plato understands this, that even if philosopher king comes to power, it is not easy to sustain that power. ठीक है, it is not easy to ensure that power will remain with the philosopher king. क्यों? Once philosopher king comes into picture, हो सकता है इवेंचुअली मिलिट्री या कोई भी या फिलोसफर किंग ही करप्ट हो जाए. Therefore, that leads to the formation, republic will move to democracy. ठीक है, democracy is what? Rule of soldier. ठीक है, soldier class rule करने लग जाएगी. But then there will be protest against them. ठीक है, people will not be happy. This will lead to what? Oligarchy coming into power. But oligarchy में भी आपसी fights हो सकती है, and oligarchy always works in their own interest. ठीक, तो इसलिए डेमोक्रेसी आएगी. ठीक है, बट डेमोक्रेसी जो होगी, टू मच डेमोक्रेसी, रूल ऑफ इग्नोरेंट पुअर्स एटसेट्रा, दिस विल इवेंचुअली लीड टू टायरनी. एंड टायरनी से फिर निजात दिलाने के लिए आपके पास आएगा एक फिलोसफर किंग. ठीक, तो दिस इज द प्लेटो साइकिल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, रिपब्लिक में एंड हाउ थिंग्स विल चेंज. गॉट इट? देन वन मोर थिंग इज role of Plato as first feminist. As I told you in his book 5, he does not differentiate much between the role of man and women, and he says that why to deprive state of from the services of women. तो women के लिए भी कहीं ना कहीं उसने प्रावधान किए हैं that women can become philosopher queens. Okay, and that is why a lot of scholars believe that we can call him first feminist. फिर दूसरा, कम्युनिज्म ऑफ मैरिज से भी women पे बहुत एक रिलीफ आएगा. They won't be bounded by the shackles of marriage. Secondly, चूंकि स्टेट बच्चा ले लेगा फॉर अपब्रिंगिंग एंड ऑल, यहाँ पे भी women फ्री हो जाएंगी. ठीक है, बट देन एरिस्टोटल अगेन विल क्रिटिसाइज दैट Plato is not taking us forward. Plato is taking us to the barbaric ages, जब family, marriage जैसे institutions exist नहीं करती थी. ठीक है, and one major criticism of Plato will come from Karl Popper. ठीक है, Karl Popper, and Karl Popper has written a very famous book, Enemies of Open Society. ठीक है, तो उसमें उसने हीगल, मार्क्स और प्लेटो को रखा है. ठीक, अब ये
ओपन सोसाइटी का एनिमी क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो फीचर्स प्लेटो डिस्क्राइब कर रहा है, दे एक्चुअली शोज एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, रिप्लेसिंग लिबर्टी विथ से ड्यूटी, डिसिप्लिन. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट राइट्स. एक्सेसिव फोकस ऑन यूनिटी, ठीक है, और यूनिटी में भी कैसे? होमोजेनाइजेशन की तरफ, क्योंकि यूजेनिक्स से आप एग्जैक्टली यही करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सट्रीम रेजिमेंटेशन, ठीक है, और रेसिज्म. तो ये यूजेनिक्स इज व्हाट? रेसिज्म ओनली. तो कार्ल पॉपर विल क्रिटिसाइज प्लेटो in his book Open Society and His Enemies, and on various grounds he will try to criticize him. One is methodological holism, ठीक है. That means what? Giving more prominence to totality over individuals. तो सोसाइटी को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो that you expect individuals to give up all their rights, all their freedom, just to be a pawn in the hands of the state or the society. This is methodological holism. Second is essentialism. अब यहाँ पे that you are trying to create some universal truth and you are saying that ultimate knowledge can be discovered, और उस नॉलेज के पीछे आप इतना भाग रहे हो. ठीक है, व्हाट इज द गारंटी दैट दैट नॉलेज इज अल्टीमेट ट्रूथ? ठीक है, तो और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं वो भी एग्जैक्टली यही कहते हैं, यू कांट चेज वन ट्रूथ बिकॉज देयर इज नो वन ट्रूथ. तो दिस इज अ श्योर साइन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. जो टोटलिटेरियन लीडर्स होते हैं, दे दिस इज व्हाट दे से, दैट वी हैव डिस्कवर्ड अ परफेक्ट ट्रूथ फॉर यू एंड दिस इज हाउ विल बी प्रोसीडिंग फ्रॉम हियर ऑन. गॉट इट? फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल जाती है. नेक्स्ट जो एक ग्राउंड है जिस पर वो क्रिटिसाइज करता है is historicism. ठीक है, historicism means what? Historical या ideological use of history. ठीक है, and using history for political purposes. So Plato has used the historical laws to show that how this form of government is bad, that form of government is bad, and eventually one should be regulated or one should be governed by the philosopher king. ठीक है, नेक्स्ट प्रेमाइज है होलसेल सोशल इंजीनियरिंग. ठीक है, देखो होलसेल सोशल इंजीनियरिंग क्या होगी? आपने रातों रात सब बदलने की कोशिश की. ठीक, आप रातों रात सब बदलने की कोशिश कर रहे हो. नाउ दिस आइडियाज, रातों रात रिवॉल्यूशनरी चेंज, आर ऑलवेज फ्रॉट विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. ठीक है, ऐसा होता नहीं है, सोसाइटी टेक्स टाइम टू चेंज. तो he will suggest what? Popper will suggest what? Go for piecemeal social engineering. ठीक, एक एक करके, धीरे धीरे करके. ठीक है, गो फॉर piecemeal social engineering. यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का. ठीक है, तो व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म? इंक्रीजिंग प्लेजर, reducing पेन. ठीक है, फोकस इज मोर ऑन प्लेजर. नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म सेज that start removing pain from people's life. एक एक करके, एक एक करके start removing pain and eventually at the end of the day people will start feeling pleasure. ठीक है, तो आप प्लेजर बढ़ाने के पीछे भागने की जगह it's better that you start focusing on removing unhappiness and difficulties from people's life, and eventually people will find that they are happy. ठीक है, and last but not the least, Popper will suggest the theory of falsification, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. It's a bridge between inductive and deductive logic. ठीक. Now this is all about Plato, but there is one thing that we need to do again, is Plato's another prominent work known as Laws.
ठीक है, तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट अ फ्यू थिंग्स ऑन लॉस, क्योंकि इनका एक पूरा लिटरेचर ऐसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक, तो लॉज में क्या है कि it's a story about three elder men, and this laws is based on a Greek island. जस्ट पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रीक आइलैंड, क्रेटे, CRETE, वेरी JRF स्पेसिफिक फैक्ट, ग्रीक आइलैंड क्रेटे। ठीक है, थ्री एल्डरली मैन। अब थ्री एल्डरली मैन की खासियत ये है कि इनमें से दो के नाम बताए गए हैं और तीसरा बस ये बताया गया ही समवन फ्रॉम एथेंस। ये नहीं बताया गया एग्जैक्टली है कौन। तो स्कॉलर्स में देयर इज अ डिबेट दैट वो प्लेटो भी हो सकता है, अरिस्टोटल भी हो सकता है, सिकेरो भी हो सकता है, एनीबडी, बट we can say that Plato is not giving name because Plato wanted to have a candid discussion without revealing his identity, and therefore we just know about two persons। ठीक है, और जो एथेनियन है उसकी आइडेंटिटी रोक के रखी गई है। तो इसमें ऐसे लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो इट्स अ डायलॉग बिटवीन थ्री एल्डर मैन, इट्स अ डायलॉग बिटवीन थ्री एल्डर मैन। ठीक, देखो आइडेंटिटी ऑफ टू इज नोन, identity of two is known, but the elder man from Athens is unknown। ठीक, अब लिखो, देखो they are trying to create in law, they are trying to create a constitution for the city Magnesia। ठीक है, याद करो कल रिपब्लिक में आइडियल सिटी का नाम क्या था? कैलीपोलिस। यहां पे हम किस सिटी की बात कर रहे हैं? मैग्नीजिया की बात कर रहे हैं, MAGNESIA। अब ये जो तीन एल्डर मैन हैं, दे आर टेकिंग अ पाथ, दे आर वॉकिंग ऑन अ पाथ। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ, व्हाई दिस पाथ इज फेमस? सो दिस पाथ इज नोन एज मिनूस पाथ। MINOS पाथ, मिनोस पाथ। ठीक, मिनोस पाथ लिखो, दिस पाथ इज नोन एज मिनोस पाथ। डैश करके लिखो, 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 इट इज द सेम पाथ, इट इज द सेम पाथ which was followed by Minos, followed by Minos, who was a legendary, who was a legendary lawgiver of Crete, lawgiver of Crete, CRETE। ठीक है, तो ये जब तीनों एल्डरमैन ये पाथ पे जा रहे हैं, तो दे इवेंचुअली वांट टू डिस्कवर the best laws in the political system for the city Magnesia। ठीक, now what is the broad difference between say Republic and Magnesia? तो रिपब्लिक एंड लॉज, तो देखो रिपब्लिक जो है वो काफी ग्रैंड है, काफी वी कैन से इंसाइक्लोपीडियाक है, दे आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, और वहां पे जो जनरल नेचर है राइटिंग का, दैट इज वेरी डेंस। ठीक है, वेरी पोइटिक, वेरी डेंस, एंड एट द सेम टाइम you see the masterpiece of Plato there। But when it comes to republic, when it comes to laws, वो मिसिंग है इसमें, एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेक्स्ट। सेकेंडली उसमें एथिक्स और बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज की बात हो रही है, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी जनरल थिंग्स। ठीक है, सो मच सो दैट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट,
they are basically talking about how should the laws be. तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ मैरिज, ऐसी सब बातें कर रहे हैं. वेरी जनरल टॉपिक्स आर देयर, but still we'll find some philosophy there. And secondly, laws is Plato's last and longest work. ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है the longest work of Plato. ठीक है, it is laws. And here they are trying to find a legislation for this ideal city. Got it? अब यहां से we will try to identify a few basic points. ठीक, तो लॉज में हमें कुछ आइडियाज मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, द डिफरेंस बिटवीन डिवाइन गुड्स एंड ह्यूमन गुड्स. तो डिवाइन गुड्स क्या है? जो गॉड के वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, कॉन्सेप्ट, आइडिया. ह्यूमन गुड्स क्या है? जो हमारे फिजिकल नीड्स के गुड्स हों. सिमिलरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल गुड्स क्या है? एक्सटर्नल गुड्स वो हैं जो गॉड के वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करने में, बेस्ट लॉज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. इंटरनल गुड्स क्या है? मैंने उल्टा बोल दिया. इंटरनल गुड्स क्या है? जो हमारी सोल के लिए अच्छे हैं. ठीक है, हमको गॉड के वर्ल्ड से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे में वर्च्यू जनरेट कर रहे हैं. एक्सटर्नल गुड्स क्या है? जो हमारी फिजिकल नीड्स को केटर कर रहे हैं. गॉट इट? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. देन नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें. देखो, बुक 11 एंड 12 ऑफ लॉज. Book 11 and Book 12 discuss different kinds of laws. For example, property law, commercial law, family law, etc. Family law, etc. Next लिखो, लिखो, लिखो. Laws also differentiate between divine and human goods. Divine and human goods. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. there is also a distinction between internal goods and external goods. तो ये सब बिल्कुल पूछ सकता है नेट जीआरएफ में कि इन सब वर्ड्स को कहाँ देखते हैं हम. ठीक है, तो लॉज में देखते हैं. यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा कंफाउंडिंग हो जाएगा. यू जस्ट रिमेंबर दीज की टर्म्स. ठीक है, ठीक. अब लॉज में एक बहुत प्रोमिनेंट हमको एक मेटाफर मिलता है. जैसे एलेगोरी ऑफ केव हमको कहाँ मिली है? रिपब्लिक में. तो लॉज में वी फाइंड अ वेरी फेमस मेटाफर और known as the puppet metaphor. Puppet metaphor. What is puppet metaphor? So this puppet metaphor actually emerges कि क्या आपका सोल जगाने के लिए, आप में रीजन इंकलकेट करने के लिए, do you need only education or you also need some temptation? जैसे कि whether you have to intoxicate, whether you have to drink wine or not, तो वो सब क्वेश्चंस को बताने के लिए तो इसमें ये बताया गया है कि ओके, दैट वर्च्यू डेवलप करने के लिए यू नॉट ओनली नीड रीजन बट यू ऑल्सो नीड टू कल्टिवेट करेक्ट फीलिंग्स. तो एक ऐसे पपेट के उससे दिखाया गया है. तो पपेट जो है, जो कठपुतली डांस होता है, उसके स्ट्रिंग्स हैं. तो एक स्ट्रिंग तो जो वर्च्यू दिखा रहा है, गोल्डन थ्रेड. ठीक है, रीजन है, सब है, बट देर आर अदर थ्रेड्स ऑल्सो विच आर पुलिंग द पपेट इन सम अदर डायरेक्शन. तो हो सकता है कि आप रैशनल हो, रीजन हो, बट समटाइम्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप में पैशन डोमिनेट करने लग जाए और नॉट. तो लॉज में ये बात बोली जा रही है कि ठीक है, वर्च्यू डेवलप करने के लिए रीजन एंड ऑल इज गुड, बट अ पर्सन शुड ऑल्सो नो अबाउट हिज वीकनेसेस, ताकि वो उनको भी ओवरकम कर सके, ताकि वो वॉलेंटरली करेक्ट फीलिंग्स डेवलप कर सके. तो दिस पपेट मेटाफर इज एक्चुअली सेइंग व्हाट, दैट in order to develop virtue you not only need reason but you also need to develop correct feelings as well. ठीक है, तो इसमें से लिख लो.
लिखो, in laws we find the famous puppet metaphor. ठीक, अंडरलाइन करो पपेट मेटाफर, लिखो लिखो लिखो, puppet is made up of different chords, C-O-R-D-S, different chords, C-O-R-D-S, in which main chord is the golden thread, representing reason, ठीक, देखो, but other chords are representing pleasure, emotions, etc. ठीक, अब लिखो लिखो, according to laws, development of virtue not only requires reason, but also the cultivation of correct feelings, but the cultivations of correct feelings, ठीक है, लिखो, therefore in laws we find a balance between reason and emotion, ठीक है, तो आपको दोनों लगेगा, क्योंकि जब आप इमोशन समझोगे तभी इमोशंस को ओवरकम करके रीजन की ओर बढ़ोगे. दिस इज द फेमस पपेट मेटाफर. ठीक, अब नेक्स्ट लॉज में एक चीज हमको और पता चलती है, द ओरिजिन्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब लॉज आते कहां से. तो एज आई टोल्ड यू दैट दे कंपेयर एथेंस एंड पर्शिया एंड दे रीच टू कंक्लूजन कि जो लॉज होते हैं वो, जो डिक्टेटोरियल लॉ होते हैं, उनकी खूबी क्या होती है कि एक पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन द प्रॉब्लम इज पीपल माइट रिवोल्ट, इट माइट नॉट बी सर्विंग द वेलफेयर एंड ऑल. आपको इसलिए दोनों का मिक्स चाहिए होगा. दैट मीन्स व्हाट, दैट एवरी लेजिस्लेशन शुड हैव बोथ कंपल्शन एज वेल एज persuasion. Got it? ठीक, तो इसमें से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन पर्शिया एंड एथेंस, ठीक, पर्शिया अंडरलाइन करो,
उसमें लिखो टू मच सब्जेक्शन, ठीक है, क्योंकि डिक्टेटर से चल रहा था ये। टू मच सब्जेक्शन एंड एथेंस अंडरलाइन करो, टू मच फ्रीडम, टू मच फ्रीडम। ठीक, अब डैश करके लिखो, लिखो बोथ आर प्रॉब्लमैटिक, बोथ आर प्रॉब्लमैटिक। ठीक, लिखो, लिखो therefore laws says that the political system must be a mixture of both subjection as well as freedom। ठीक, तो इसीलिए लॉज जो होते हैं वो दोनों सब्जेक्शन और फ्रीडम मिक्स एक होना चाहिए। ठीक है, लिखो, अब इसमें एक और एग्जांपल आता है, लिखो, लिखो मेटाफर ऑफ डॉक्टर, मेटाफर ऑफ डॉक्टर। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करता है ये, तो देखो ये क्या कहता है, डॉक्टर दो टाइप के होते हैं, ये लिखते जाओ प्लीज, मेटाफर ऑफ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर्स दो टाइप के होते हैं, प्री डॉक्टर एंड स्लेव डॉक्टर। प्री डॉक्टर एंड स्लेव डॉक्टर, प्री डॉक्टर आर हु, फ्री डॉक्टर्स वो हैं जो फ्री लोगों का इलाज कर रहे हैं, मतलब सिटीजन्स का, एलिट्स का, नॉन स्लीव्स का। तो ये फ्री डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं, बढ़िया आराम से समझाएंगे, बोलेंगे आपकी हेल्थ में क्या इश्यूज हैं, दे विल डायग्नोज, दे विल टॉक विथ यू, दे विल नेगोशिएट विथ यू, दे विल कन्विंस यू, दे विल नॉट फोर्स। स्लेव डॉक्टर्स क्या है, इनको क्या ही पड़ी है स्लेव डॉक्टर की, एक तो डॉक्टर मिल रहा है स्लेव्स को, गॉट इट, तो मार धाड़ करके साम दाम ढंड कैसे करके उनका इलाज करेंगे, बोलेंगे यही हुआ है लो, नहीं और दो, दो और पड़ेंगे आपको, गॉट इट। सो he is saying, by the help of the metaphor of doctor, he is explaining that this slave doctors won't function in the long time, you need to learn from free doctors। क्यों, ये पर कन्विंस भी करते हैं, बट बाद में पेशेंट को कन्विंस करके दे कंपल्स देम आल्सो टू टेक मेडिसिन फॉर देयर ओन बेनिफिट, गॉट इट। तो ऐसे इसमें लिख लो, लिखो दे यूज द मिथ ऑफ, दे यूज द मेटाफर ऑफ डॉक्टर, डैश करके लिखो, लिखो, लिखो फ्री डॉक्टर वर्सेस स्लेव डॉक्टर। ठीक है, फ्री डॉक्टर वर्सेस स्लेव डॉक्टर, अंडरलाइन फ्री डॉक्टर एंड राइट use of both persuasion as well as compulsion, persuasion as well as compulsion।
लिखो लिखो लिखो, रिलेटेड टू लेजिस्लेशन इज ऑल्सो, ये आ गया समझ में, दोनों का मिक्स होना चाहिए, आप फोर्स नहीं कर सकते, तभी वो वेलफेयर, तभी वो पॉलिटिकल सिस्टम सर्वाइव करेगा। ठीक है, लिखो रिलेटेड टू रिलेटेड टू the ideas on legislation is also another myth of Cronus। ठीक है, myth of Cronus, myth of Cronus। ठीक है, तो देखो क्रोनस क्या था, एक फेमस रूलर हुआ करता था, एंड उसको ये पता था कि लोग करप्ट होते हैं, तो ही एंश्योर दैट लोगों की लाइफ ब्लेसिंग में हो। तो इसका अल्टीमेटली आउटकम ये है कि यू शुड नेवर बी रूल्ड बाय योर इक्वल, यू शुड ऑलवेज बी रूल्ड बाय योर सुपीरियर। ठीक है, ये चीज एक्सेप्ट की जा रही है लॉज में, बट एट द सेम टाइम व्हेन अ सुपीरियर इज मेकिंग अ रूल, that rule should not be based on compulsion, it should also be based on persuasion, first thing. Secondly, it should be for the welfare of everyone। ठीक है, तो मिथ ऑफ क्रोनस से ये ला रहे हैं कि अगर कहीं पे डिक्टेटर से भी लॉ आ रहा है तो इट शुड बी क्यूरेटेड एनफ टू एंश्योर दैट इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब वो एट द एंड ऑफ द डे वो केवल डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन अथॉरिटी का लॉ ना रह जाए। गॉट इट? तो ऐसे लिखो मिथ ऑफ क्रोनस, डैश करके लिखो पहला पॉइंट इसमें। लिखो लिखो ड्यूरिंग हिज रूल लाइफ वॉज हैप्पी। ठीक, लिखो वाई, वाई लिखो बिकॉज ही न्यू बिकॉज हिज ही न्यू because he knew that people are corrupt। ठीक है, देखो therefore according to him one should not be ruled by their equals ठीक है, देखो rather one should be ruled by one's superior, ठीक है, देखो देखो but at the end of the day law, at the end of the day फर्स्ट पॉइंट लिखो while law should have authority, comma, law should also be concerned with welfare of whole community, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो लॉ शुड बी बेस्ड ऑन बोथ persuasion and compulsion, ठीक है, नेक्स्ट लिखो दिस इज वेयर वी ऑल्सो गेट द आइडियाज ऑफ प्रेल्यूड्स। ठीक है, तो ये भी नेट जीआरएफ में पूछ सकता है, वेयर डू यू फाइंड द आइडियाज ऑफ प्रेल्यूड्स। ठीक है, प्रेल्यूड्स क्या होता है? आप जब किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, जैसे अभी कपिल शर्मा शो चलता है, ठीक है, नहीं कपिल शर्मा तो रॉन्ग एग्जाम्पल हो गया, फिल्म फेयर चल रहा होता है, तो उसमें मान लो
अभी आईफा हुआ तो रेखा की परफॉर्मेंस लास्ट में रखेंगे, उससे पहले फिलर्स रखेंगे. दिस इज प्रिल्यूड. तो यू एंश्योर दैट पीपल हैव एनफ एंटिसिपेशन, पीपल have enough time to identify with what is going on the stage, so that by the time the main performance comes into picture, people are equally invested in that. तो ये आपको persuasion और compulsion दोनों से आएगा. आप लोगों को persuade करके रखो कि भाई 1 घंटे बाद रेखा जी नाचेंगी, लेकिन जब वो आए तो वो कंपल्सरली फिर बैठ के उनकी परफॉर्मेंस देखें. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिल्यूड, दैट even if law is coming from a higher authority, people should be persuaded enough that this law will eventually work for them for their welfare. Got it? तो दो चीज समझनी है. प्रिल्यूड मतलब समा बांधा जा रहा है. इट इज ट्राइंग टू आपकी जिज्ञासा बढ़ाने की कोशिश करे. दे आर ट्राइंग टू मेक यू इन्वेस्टेड, दैट सी व्हाट इज कमिंग इज गुड फॉर यू. ठीक है, यही होता है. ठीक है, ऐसे ही आपका जो मोबाइल या ऑल द सोशल मीडिया ट्राइज टू एंगेज कि भाई अब जो आएगा वो उसमें ज्यादा मजा है. तो दिस इज द टेक्निक ऑफ बोथ कंपल्शन एंड परसुएशन. सो व्हेन वी सॉ दिस मिथ ऑफ क्रोनस, ठीक है, डॉक्टर, फ्री डॉक्टर, स्लेव डॉक्टर, ठीक, and this metaphor of puppet metaphor and all, through all this they are trying to say that laws, even if they are coming from a divine or higher authority, at the end of the day they should serve the welfare of community, and that only then people will be invested. तो आप देख रहे हो रिपब्लिक में there is an authoritarian philosopher king. There is no limitation on his power except that he can't change the constitution. By the time laws come into picture, you will find that it becomes more accommodative. It becomes more open to the idea that it should serve the welfare of all, and people should be able to identify with the laws. Got it? तो यहाँ legislation, proper legislation की sort of यहाँ पे बातें की जा रही हैं. Got it? तो we saw many new terms in his laws. ठीक है, the myth of Cronus, the myth of free doctor and slave doctor, the idea of free doctor and slave doctor, your doctor metaphor you can say, and then we saw the the puppet metaphor and all, and then finally we are seeing the idea of prelude. ठीक है, तो लोगों को कड़वी दवाई देने से पहले मीठी दवाई खिलाओ. दिस इज द आइडिया ऑफ preludes. ठीक, now one more thing that we find in laws is some ideas on theology again. तो यहाँ पे the book is trying to understand 3 kinds of impiety. ठीक है, when I say impiety that means you can say something kind of blasphemy and all. तो ये 3 टाइप की impiety आइडेंटिफाई करती है. ठीक है, one is atheism, got it, other is deism, and last is traditional theism. ठीक, atheism, deism and traditional theism. ठीक है, atheism as you know that it is the belief that God does not exist. Deism, the belief that God exists but God is indifferent to human affairs. And the last, traditional theism, means the belief that God exists but he can be bribed. ठीक है, तो लॉज में ये बोला जा रहा है कि लॉ गिवर मस्ट persuade to citizens to abandon these kind of false beliefs, and if citizens refuse they should be punished. ठीक है, देखो आप जब माइकियावेली करोगे तो वहां पे भी क्या सजेशन दी जाएगी प्रिंस को, दैट यू शुड यूज रिलीजन फॉर योर ओन एंड एंड ऑल. ठीक है, आप रिलीजन को पूरी तरीके से, यू कैन डिक्राई द प्रेजेंस ऑफ इट, यूज इट. तो कहीं ना कहीं रिलीजन का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ऐसे लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन लॉज वी सी 3 kinds of impieties.
3 kinds of impieties. ठीक, atheism डैश करके लिखो, belief that gods do not exist. ठीक, राइट नेक्स्ट deism, DEISM. देखो, belief that gods exist but they are not bothered about human affairs. They are not bothered about human affairs. ठीक, नेक्स्ट लिखो, ट्रेडिशनल थीज्म. ट्रेडिशनल थीज्म, देखो, इट मीन्स गॉड एग्जिस्ट but can be bribed. God exists but can be bribed. ठीक, तो लिखो, द लॉज प्रपोजेस punishment against them. The laws proposes punishment against them. ठीक, why? लिखो why. लिखो because these beliefs affect the political and ethical foundations of a city. ठीक, अब हम लास्ट के 2 प्रोमिनेंट आइडियाज में आएंगे लॉज के. स्क्रूटिनियर्स एंड द नॉक्टर्नल काउंसिल. ठीक है, तो नॉक्टर्नल काउंसिल इज मोर लाइक यू कैन से द गाइड टू द फिलोसोफर किंग और द रूलर कि भाई लॉज में क्या चेंजेस करने नहीं करने. स्क्रूटिनियर्स आर मोर लाइक से करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये स्क्रूटिनी करेंगे कि क्या ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, कौन फालतू काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है. तो यू कैन एज अ नॉर्मल सिटीजन यू कैन कंप्लेंट अबाउट अदर ऑफिसर्स इन द स्क्रूटिनियर्स. ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि कहीं ना कहीं यहाँ ये माना जा रहा है कि only reformatory justice will not work. You will have to also go for rectificatory justice. ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट की भी बात हो रही है, डिसऑनर करने की भी बात हो रही है. एंड यू नो प्लेटो इज नोन टू इंट्रोड्यूस द पनिशमेंट ऑफ प्रिजन. वो फर्स्ट थे जिन्होंने प्रिजन पनिशमेंट का आइडिया लिया है कहीं ना कहीं. ठीक है, एथेंस में पहले प्रिजन्स नहीं थे. ठीक है, वो प्रिजन वाला आइडिया प्लेटो से आता है. ठीक है, तो इसमें लिखो, नेक्स्ट लिखो another 2 ideas which we find in laws are पहला लिखो, ऐसे लिखो, डैश करके लिखो, इन बुक 11 and 12. इन बुक 11 and 12. ठीक, पहला लिखो, आइडिया ऑफ स्क्रूटिनियर्स. देखो, ये नॉक्टर्नल काउंसिल पे तो क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, बट उनके फंक्शंस पे नहीं आया है. आई विल मेक यू राइट फंक्शंस. ठीक है, और स्क्रूटिनियर्स पे अभी नहीं आया है, इट कैन कम. लिखो, पहला स्क्रूटिनियर्स,
लिखो, लिखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिस, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिस, पहला पॉइंट लिखो। सेकंड लिखो, 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 स्क्रूटिनियर्स audit other officials of the city, scrutineers audit other officials of the city and punish them if they are found guilty. ठीक, नेक्स्ट लिखो, लिखो, दे एक्ट एज चेक एंड बैलेंस, दे एक्ट एज चेक एंड बैलेंस। नेक्स्ट लिखो, लिखो, in order to ensure that scrutineers are themselves not corrupt, that scrutineers are themselves not corrupt, comma, it is ensured that they have a proven reputation of good character, a proven reputation of good character। ठीक, लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो, if some official feels that the scrutineer has targeted him wrongly, the scrutineer has targeted him wrongly, comma, they can take scrutineer for a trial, they can take scrutineer for a trial। ठीक, तो स्क्रूटिनियर का ये रोल है, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रूटिनियर कहां दिखता है? लॉज में दिखता है। नेक्स्ट देखो, नॉक्टर्नल काउंसिल, लिखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉक्टर्नल काउंसिल। ठीक है, इनके इनके कॉन्सेप्ट पे द लॉज बुक जो है, द डायलॉग इट एंड्स। ठीक है, तो इसमें लिखो नॉक्टर्नल काउंसिल, लिखो, इट इज एन एलीट ग्रुप ऑफ elderly citizens, it is an elite group of elderly citizen। नेक्स्ट लिखो, 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 they have won many honors, they have won, WON, many honors, comma, they have traveled abroad to learn from other states, ठीक, अब नेक्स्ट लिखो, लिखो, दे आर नो नॉक्टर्नल काउंसिल, दे आर नो नॉक्टर्नल काउंसिल because they meet daily between dawn and sunrise, dawn and sunrise। ठीक, now लिखो, लिखो, ऐसे लिखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉक्टर्नल काउंसिल। ठीक, पहला फंक्शन लिखो,
फर्स्ट लिखो, रिवाइजिंग द लॉज बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, revising the laws because of changing circumstances. Next लिखो, to study ethical principles behind the law, to study ethical principles behind the law. Next लिखो, exploring how philosophical and exploring how philosophical and theological ideas, exploring how philosophical and theological ideas can be applied to the laws, can be applied to the laws. Okay, so we see how here in the form of nocturnal council and all, they are trying to create a ring around the ruler so that laws remain contextual, laws do not become barbaric, laws at the end of the day are able to serve the interest of everybody. ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन लॉज एंड योर रिपब्लिक. ठीक है, so I think you are comfortable with all these ideas. There might be new ideas. Puppet metaphor मतलब आपको इमोशन और रीजन दोनों में बैलेंस रखना है. इमोशंस आर नेसेसरी टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, तभी आप फुल्ली रीजन डेवलप कर पाओगे. ठीक है, देन दिस इंपॉर्टेंस क्या है उन तीन बुड्ढों की जो जा रहे हैं मीनोस पाथ. ठीक है, देन वी हैव मेटाफर ऑफ डॉक्टर. ठीक है, तो लॉ शुड बी बेस्ड ऑन बोथ परसुएशन एंड कंपल्शन. ठीक है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिल्यूड्स, गॉट इट, and the three kinds of impiety that should be punished: atheism, deism, and traditional theism. And then the finally two concept of scrutineers and nocturnal council. ठीक है, we have done most of the things in Plato. I think इसके beyond नहीं आना चाहिए. I would like to introduce one more thing. ठीक है, तो प्लेटो से रिलेटेड there are two famous paintings also. तो I might expect a question out of them. ठीक है, तो एक पेंटिंग है, दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड. ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा. एक पेंटिंग है रेफेल की. ठीक है, द स्कूल ऑफ एथेंस. ठीक, रेफेल पेंटिंग, स्कूल ऑफ एथेंस. यहाँ पे आप देखो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं, और भी लोग हैं, मेजर फिगर प्लेटो और एरिस्टोटल हैं. एंड प्लेटो इज होल्डिंग अ बुक नोन एज टिमियस एंड एरिस्टोटल इज होल्डिंग हिज निकोमेकियन एथिक्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे philosophers एंड ऑल हैं, बट प्रोमिनेंटली यू कैन आइडेंटिफाई प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन बिटवीन. ठीक है, प्लेटो इज होल्डिंग हिज डायलॉग टीमियस एंड एरिस्टोटल इज होल्डिंग हिज निकोमेकियन एथिक्स. ठीक है, तो दिस पेंटिंग इज फेमस. नाउ अनदर पेंटिंग विच इज फेमस इज Plato conversing with a student at academy by Pierre Puvis de Chavannes. ठीक है, Pierre Puvis de Chavannes. ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटो जो है अपने एक स्टूडेंट से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसकी एक ये फोटो है. ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दीज टू पेंटिंग्स. क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, बट सिंस वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस. गॉट इट? So this is all for today's class. I hope you understood Plato, you enjoyed Plato. We'll continue with Aristotle. Got it? Thank you. Take care. Have a good day.